हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? फाइन, वेरी गुड. नाउ एज यू नो, वी हैव studied chapter number 1 of maths 1, that is mathematical logic, and I hope you must have seen those 3 videos. Also, I have put the links of these 3 videos in my description. Now we are going to study the chapter which is known as differentiation, which is the first chapter of maths 2, and this is very important chapter. This is quite a lengthy chapter, and you have to study this chapter with full concentration, by heart the formulas and various techniques in solving the example. Now, why this chapter is important? Basically, from your study point of view, next 5 chapters of Maths 2 are dependent totally on this chapter. So if your fundamentals of this chapter are not clear, आपको आगे के चैप्टर समझने में तकलीफ होगी. चलो, तो कौन से 5 पार्ट में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, देखिए जरा. Part number 1. There we will see the introduction, geometrical meaning of differentiation, basic formulae and rules of differentiation. Part number 2, we are going to study the differentiation of composite functions. Now, what is the meaning of all this will be clear to you when we study those particular topics in the next video. Part number 3 will consist of inverse functions, and to study the inverse function, related important trigonometrical formulae also we will see, which you have to by heart, understand and by heart, as I have been always telling you. Part number 4 will be implicit functions. Don't get afraid, ये बड़े बड़े वर्ड है, बट इसका मीनिंग आपको एग्जाम्पल हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे तभी एकदम क्लियर हो जाएगा. सम एग्जाम्पल्स वी सॉल्व बाय डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथमिक मेथड, वो भी आपको मैं समझाऊंगा. और मैंने आपको बोला था मेरा फर्स्ट वीडियो में कि 11वीं के कौन से फॉर्मूले आपको आना मांगता है, उसमें लॉगरिथम वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर. See that video also. 5वें पार्ट में we will study differentiation of parametric function and also higher order derivatives. चलो फिर बच्चों, पार्ट 1 we will start. अभी आप पूछेंगे सर ये डिफरेंशिएशन क्यों स्टडी करने का है, इसका कुछ प्रैक्टिकल यूज है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि जो हम स्टडी करने वाले हैं उसका प्रैक्टिकल तो यूज होना ही मांगता है. एज ऑल ऑफ यू नो, दिस डिफरेंशिएशन इज अ पार्ट ऑफ व्हाट इज पॉपुलरली नोन एज डिफरेंशियल कैलकुलस, which is the part of a very important branch of mathematics, that is calculus. और बच्चों, आपने न्यूटन महाराज का तो नाम सुना है. उन्होंने इस कैलकुलस का फाउंडेशन बिल्ड किया अराउंड 400 इयर्स बैक. आपको सुन के ताज्जुब होगा, जब भी न्यूटन महाराज ने यह कैलकुलस निकाला तभी उनकी उम्र 25 साल के भी कम थी, और हम लोग अभी ये स्टडी करेंगे. ठीक है, तो what is calculus and what is differentiation? Let us come to part of differentiation. अभी देखिए, there is something we can call as y equal to fx equal to x raised to 4 plus 4. For example,
मतलब क्या होता है, y is a function of x. Function of x means the value of y depends on x. कैसे डिपेंड करेंगे, यहां हमने एक एग्जांपल लिया है. व्हाट इज, हाउ y is defined, हाउ फंक्शन ऑफ x is defined, x raised to 4 plus 4. तो x जब भी 1 होगा तभी y 5 होगा, x जब भी 0 होगा तभी y 4 होगा, x जब भी -1 होगा तभी भी y 5 होगा, एंड सो ऑन. y का वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन x. x and y both are variables. X is called independent variable and y is called dependent variable. क्यों dependent variable? Because value of y is dependent upon value of x. चलो आगे चलेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे कैसा होता है. देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे y मतलब फंक्शन ऑफ x आएगा. लेट अस से दिस इज द ग्राफ, not to the scale but for our understanding this is the graph. Now P is a point on a graph जिसके कोऑर्डिनेट है x एंड fx. नेचुरली यहां x है एंड दिस ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट विल बी fx. अभी मैं क्या करता हूं, x को थोड़ा बढ़ाता हूं, I make it x plus h. तो we go to point number q. Point number q का x कोऑर्डिनेट है x plus h and naturally y coordinate will be function of x plus h. हम लोग फंक्शन ऑफ x का वैल्यू कैसा निकालते हैं, जहां जहां राइट हैंड साइड में x है वहां ये वैल्यू डालते हैं. तो यहां फंक्शन ऑफ x है तो x रेज टू 4 प्लस 4, फंक्शन ऑफ x प्लस h है तो x प्लस h ब्रैकेट रेज टू 4 प्लस 4. अभी बच्चों आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखा है तो कॉर्ड PQ, कॉर्ड P का स्लोप हमें कैसा मालूम पड़ेगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. फेमस फॉर्मूला है स्लोप का. तो यहां देखो स्लोप विल बी y2 मतलब फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x. ये y कोऑर्डिनेट है q एंड p के रिस्पेक्टिवली और डिनोमिनेटर में x कोऑर्डिनेट है x प्लस h माइनस x. समझ गए. तो यहां x और माइनस x कैंसल हो जाएंगे. द आंसर विल बी फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय h. अभी ये जो फैक्टर है इसका हम लिमिट लेंगे एज h इज टेंडिंग टू 0. अभी आपको लिमिट तो मालूम है, आपने 11वीं में पढ़ा है. h इज टेंडिंग टू 0 मतलब x का वैल्यू 0 के बहुत 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 ही नजदीक है, लेकिन एक्चुअल 0 है क्या, नहीं. तो h comes to 0 from right hand side of number line or it can come from left hand side of number line. right hand side मतलब क्या, h is 1, 0.9, 0.8, 0.1, 0.01, 0.001 मतलब राइट से h 0 के नजदीक आ रहा है, उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट. और लेफ्ट से आएगा तो -1, -0.9, -0.8, -0.1, -0.001, -0.000001. तो that is called left hand limit because h is coming towards 0 from left hand side. ये आपने लिमिट में पढ़ा है. तो ये जब भी हम स्लोप
का लिमिट लेते हैं विथ h इज टेंडिंग टू 0। h0 मतलब ये जो q पॉइंट है ना, ये अलोंग द कर्व विल कम नियरर 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 टू p, क्योंकि ये जो पॉइंट है x कोऑर्डिनेट, दिस विल कम नियरर 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 टू x। ये x प्लस h जो यहां है, इट विल कम नियरर 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 टू x। अभी ये 0 होगा तो ये जो कॉर्ड है दैट विल बी जस्ट अ टेंजेंट टू p, एंड बच्चों दैट इज नोन एज f dash x, or that is known as y dash, or that is known as dy by dx, and this is what is derivative of fx. Same language is same, but output is same. Language may be different, but output is same. Y dash, derivative of y, dy by dx, derivative of y with respect to x. This is the geometric meaning of differentiation, and it is nothing but the slope of a tangent to this point, at this point P to the curve. तो ये जो अगर हम लोग ऐसा tangent निकालेंगे तो you know बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्लोप मतलब इट विल बी tan of this angle theta. समझ गए? Now derivative of y with respect to x, derivative of fx, all one and the same meaning. समझ गए? चलो, नहीं समझ गए फिर से ये स्टॉप करके स्टडी करो। हाँ, अभी जैसा मैं बोला कि न्यूटन महाराज ने ये कैलकुलस का फाउंडेशन रखा, एट द सेम टाइम न्यूटन तो थे इंग्लैंड में, and there was another mathematician, Leibniz, in Germany. He had also contributed along with Mr. Newton for this calculus, which is a very important branch of mathematics. तो ये जो फॉर्मूला है और ये जो कंसेप्ट है कि dy by dx और y dash और f dash x means derivative of y with respect to x means derivative of fx with respect to x is equal to limit as h tends to 0 function of x plus h minus function of x divided by h. इस फॉर्मूला को बोलते हैं लाइबनिट्ज नोटेशन. Now let us go further. Same thing is valid if you take another point R, take slope of RP and take h tending to 0, you will get the same answer, provided this function is differentiable at point P. तो उसके डिटेल में हम लोग अभी नहीं जाएंगे, but whether h is tending to 0 from right hand side or whether h is tending to 0 from left hand side, the answer should come same. अभी देखिए, what is derivatives from first principle? Now if you use this formula for differentiation or derivative and find out the derivative of a given function, समझो आपको दिया fx is equal to tan x. So if you put function of x plus h as tan x plus h minus function of x as tan x divided by h and solve this and find out derivative of tan x with respect to x, then you know we have solved the problem by first principle or better from first principle. But बच्चों, हमारे 12th standard में normally they will not ask to find the derivatives from first principle. 11th में, if you remember, you have solved some example where you have found the derivatives from first principle.
समझ गए आप? अभी हम लोग क्या करेंगे, देर आर सर्टन स्टैंडर्ड फॉर्मूले which have been derived based on first principle. So we will solve our example using those standard formulae and rule, which we will see in the next slide. Finding derivatives of function using Leibniz notation is known as finding derivatives from first principle. यही तो मैंने आपको बताया. हाँ, अभी derivative is also defined like this, which is nothing but very similar to Leibniz notation. ये क्या है? डेल्टा x. मतलब I change x by small amount delta y. That time the corresponding change in y is delta y. कॉरस्पॉन्डिंग चेंज, यहां देखो मैं गलती किया है, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इफ यू टेक दिस रेशियो and limit of this ratio as delta x tends to 0, you will also get dy by dx. ये हमें बहुत बार यूज करना पड़ता है. अभी लाइबनिट्ज नोटेशन में वही है. दिस न्यूमरेटर इज चेंज इन fx और चेंज इन y फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज ऑफ x h इन x. समझ गए? चलो, दिस इज application of differentiation in science and engineering. अभी साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इन जनरल कैलकुलस, उसके बहुत 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 एप्लीकेशन है. तो देखिए यहां डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लाइबनिट्ज नोटेशन है, ये दूसरा नोटेशन है. एंड व्हाट आर, अभी यहां देखो, ये मैंने गलती किया था, ध्यान रखो. गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती से ना सीखना ये बड़ी बुरी बात है. तो ये dy डेल्टा y क्या है? चेंज इन y. फॉर डेल्टा x इज चेंज इन x. जब भी x आप डेल्टा x से चेंज करेंगे तभी y कितना चेंज होएगा? डेल्टा y. ये रेशियो का आप लिमिट लेंगे तो इट बिकम्स dy by dx. Now what are the applications? Slope of a tangent. Suppose somebody asks you find the slope of a tangent. Y is equal to sec square x at point x equal to pi by 6. तो हमें डेरिवेटिव निकालना है. ओके, डेरिवेटिव इज नथिंग बट, ये याद रखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. dy by dx मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. ये जो डिनोमिनेटर में x है, इसका मतलब वही है कि विथ रिस्पेक्ट टू x. रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये dy by dx का मतलब होता है. तो बच्चों, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, व्हाट इज वेलोसिटी? व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग s से डिनोट करते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम t से डिनोट करते हैं. तो वेलोसिटी विल बी ds by dt. समझ गए? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज डिनोटेड बाय s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. एक्सेलरेशन याद है आपको फिजिक्स का? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो वेलोसिटी वी आर डिनोटिंग बाय v, तो dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t. सो डेरिवेटिव ऑफ v लेंगे आप विथ रिस्पेक्ट टू t, तो वो बन जाएगा एक्सेलरेशन. डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेंगे आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन जाएगा वेलोसिटी.
समझ गए? So these are very few applications which I have mentioned. Numerous applications are there. तो आपको इंजीनियरिंग स्टडी करना है, आपको साइंस स्टडी करना है, तो आपको ये डिफरेंशियल कैलकुलस आना ही मांगता है. चलो आगे जाएंगे. अभी नाउ आई विल टेल यू सर्टन फॉर्मूले which we have to use in solving the examples. Now as I said, how these formulae are derived? By using first principle. But every time we cannot use first principle. नहीं तो हमको एक एग्जाम्पल सॉल्व करने को 2 घंटा लगेगा. चलो, ये मैंने क्यों किया ऐसा? क्योंकि आपको मालूम होना मांगता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो आगे. दीज आर द बेसिक फॉर्मूले एंड रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन. रूल्स अगले स्लाइड में आएगा. तो देखिए सर, ये टेबल क्या है? इफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड इट इज इक्वल टू x रेज टू n, तो उसका डेरिवेटिव कैसा आएगा? dy बाई dx मतलब f डैश x, वो क्या आएगा? n x रेज टू n माइनस 1. ये फॉर्मूला हमको दिया है. ये फॉर्मूला कैसा डिराइव किया? बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. अभी देखो, n की वैल्यू समझो 5 है, तो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5 और fx इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5. तो dy बाई dx क्या होएगा? और f डैश x क्या होएगा? 5 एक्स रेज टू 5 माइनस 1 मतलब 5 एक्स रेज टू 4. समझ गया आप? चलो, इफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ x, तो उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x. इफ y इज इक्वल टू साइन x, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x. इफ fx इज इक्वल टू cos x और y is equal to cos x, then dy by dx is equal to minus sin x or f dash x is equal to minus sin x. समझ गए? So this is one table which you must by heart before starting this chapter. क्योंकि ये 11वीं में हमने पढ़ा है. ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो बनाया है, बट दिस विल मेक अ वेरी स्ट्रांग फाउंडेशन, स्ट्रांग बेस फॉर यू. अभी ये दूसरा टेबल है. सेक एक्स. सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है? सेक एक्स टैन एक्स. कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स. वैसा ही ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है? ई रेस टू एक्स. यू नो ई इज अ नेचुरल बेस फॉर लॉगरिथम. ये 11वीं में हमने पढ़ा है. ए रेस टू एक्स, ए मतलब सम कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? a रेस टू एक्स इंटू लॉग a. तो समझो y इज इक्वल टू 100 रेस टू x, तो 100 रेस टू x का डेरिवेटिव क्या? 100 रेस टू x मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 100. यहां a का वैल्यू मैंने कितना लिया? 100. लॉग x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x. अभी यहां बच्चों ध्यान दे दो, ये लॉगरिथम का बेस होता है. यहां जो नीचे लिखा है ना मैंने a, यहां कुछ लिखा है क्या? मैंने नहीं लिखा है. तो इन कैलकुलस वेनेवर दे डू नॉट मेंशन एनी बेस, देन इट इज सेड, इट इज assumed, इट इज अ कस्टमरी दैट द बेस इज e, नेचुरल बेस ऑफ लॉगरिथम. तो log of x to the base e, e है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 upon x. and this is what? log of x to the base some different number a. तो ये क्या होगा? 1 upon x log a. यहां देखो बेस नहीं लिखा है, मतलब नेचुरल बेस. तो सपोज किसी ने पूछा व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस 5, मतलब a का कीमत कितना आएगा? इधर 5. a कैन बी एनीथिंग, तो यहां आएगा 1 अपॉन x log a.
समझ गए? तो a की जगह क्या आएगा? 5. नाउ प्लीज स्टडी लॉगरिथम्स के फॉर्मूले. You know log of negative number cannot be taken, log of 0 cannot be taken, and base can never be 1, base can never be 0, base can never be minus. समझ गए? तो ये लॉग पढ़ो, ये दोनों टेबल्स बाय हार्ट करो. आपको कोई नींद में से भी उठेगा और पूछेगा e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, इमीडिएटली यू शुड से e रेस टू एक्स. नींद से किसी ने उठाया, बोला x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या है, n x रेस टू n माइनस 1, फट करके से बोलने को आना मांगता है. नाउ देयर आर सर्टन रूल्स. ये रूल्स भी सिंपल है. ये देखो, अभी ये क्या है, सम कांस्टेंट इनटू u. u इज सम फंक्शन ऑफ x. मतलब y इज इक्वल टू 5 टाइम्स साइन x. तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या है, cos x. तो 5 टाइम्स cos x. अभी ये क्या है, इफ देयर आर टू फंक्शंस एडिशन, तो उनका डेरिवेटिव का भी एडिशन हो जाएगा. इफ y इज इक्वल टू साइन x प्लस e रेस टू x, तो यहां आ जाएगा साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x. समझ गए? y इज इक्वल टू u माइनस v, मतलब somebody says y इज इक्वल टू x रेस टू n माइनस log x, तो यहां आ जाएगा डेरिवेटिव n x रेस टू n माइनस 1 माइनस log x का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन x. सिमिलरली इफ y इज multiplication of two functions like x square into sin x, तो यहां क्या आएगा, u into derivative of v plus v into derivative of u. और if y is a quotient of two functions like y is sin x upon log x, तो ये क्या आएगा, v मतलब डिनोमिनेटर into derivative of numerator माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर. तो ये रूल आपको याद रखना है. आपके बुक में ये फॉर्मूले रहेंगे, ये कंसाइज फॉर्म में मैं दिया है. ये प्लीज बाय हार्ट करो, इतने बाय हार्ट करो कि नींद में से कोई उठाएगा. इफ y इज इक्वल टू u अपॉन v, क्या डेरिवेटिव है, v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर. खुला बोल देने का. समझ गए? देन योर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी इजी टू अंडरस्टैंड, विच विल बी कॉम्पोजिट फंक्शन. अब ये कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Next part of this chapter I will upload soon. Please share with your friends. This is very important video for a very important chapter of Maths 2. Thank you very much. Bye.